So the title we have for today is Wake Up, Revive What Has Died. शीर्षक जो हमारे विषय का है, जाग जाओ और पुनर्पाओ जिसमें से मृत्यु हो चुकी है। This is a warning we are getting directly from the Lord for those that are following us. ये परमेश्वर से सीधा मुझे चेतावनी मिली है, जो हमारे अनुयायी है या फिर जो हमारी इस संगठना या फिर प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं। So God is warning you. If you're hearing my voice, God is warning you right now that it's time for you to wake up and to bring back to life the things in your life that have died, which were given to you by God. परमेश्वर के द्वारा ये चेतावनी है, वाणी है, जाग जाओ, पुनर्जीवित हो जाओ, जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, जो मृत्यु के अवस्था में पड़ी है, उसमें से पुनर्जीवित हो जाइए। Now, many of you know that as a ministry, we have started fasting the first, second, and the third of each month in order for God to guide us in that month toward His purpose. आप में से कई जानते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर महीने के 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, 1 से 3 तक हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर से हम सुने, सेवकाई में बढ़ोतरी हो और परमेश्वर की वाणी के हिसाब से हम आगे बढ़े। And we are seeing that as we do this faithfully, God gives us something different to focus on for that month that needs to be done according to His will. जब हम ये विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर ने कही हुई वाणी को पूरा करते जा रहे हैं, या फिर उपवास, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है उस महीने के लिए जो जरूरी है और जो हमें करना चाहिए। So this month, the Lord has very clearly said it's time to wake up before it is too late. और इस महीने परमेश्वर ने जो कहा है, जाग जाओ ताकि बहुत देर ना हो जाए। And so we'll go directly to the word. तो हम सीधा परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे आज। So let's go to Revelation chapter 3. नीति वचन 3 अध्याय। Revelation chapter 3, नीति वचन 3 अध्याय verse 1 to verse 5. उसका 1 से लेकर 5वें वाक्य तक। नीति वचन 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। Now, in the book of Revelation, as we all know, this is a vision that John, the Apostle John, has while he is in an island on his own. हम इससे अधिक जानते हैं इस अध्याय में और इस भाग में एक दर्शन के पश्चात परमेश्वर जो यूहन्ना से बातें करता है, जब वो द्वीप में ठहराया गया था। And in chapter 2 and 3 specifically, the vision actually is Christ talking to different churches in the future. और अपनी प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में स्पष्ट रीति से यूहन्ना को परमेश्वर दर्शन देता है। 2 और 3 अध्याय में कलीसिया की ओर जो दर्शनें हैं उसके बारे में बताया गया है। And in these visions, when Christ talks to the churches, to the different churches, he points out their good things and their bad things. जब इस अध्यायों में और इस भागों में परमेश्वर कलीसिया से बातें करता है, तो उस कलीसिया के विषय में अच्छी चीजें और उनकी बुराइयों के बारे में भी बताया गया है। And in this particular chapter, Revelation chapter 3, in the beginning, it's talking to the church of Sardis. और ये नीति वचन 3 अध्याय के शुरुआत में हम देखते हैं कि सार्दिस कलीसिया के और परमेश्वर की वाणी। So I will read one verse and then brother will translate into Hindi. मैं पहले वाक्य पढ़ूंगा, फिर भाई हिंदी में उसकी अनुवाद पढ़ेंगे। I'll read it in the ISV, which is easier to understand. मैं ISV में पढ़ने वाला हूँ, जो सरल है समझने के लिए। To the messenger of the church of Sardis write, the one who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know what you've been doing. You are known for being alive, but you are dead. सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं
तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मैं Be alert and strengthen the things that are left which are about to die. I note that your actions are incomplete before my God. जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। So remember what you received and heard, obey it and repent. If you're not alert, I will come like a thief and you won't know the time when I come to you. इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। But you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me in white clothes because they are worthy. पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। प्रेष God. And then verse 5, the person who conquers in this way will wear white clothes, and I will never erase his name from the book of life. I will acknowledge his name in the presence of my Father and his angels. जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मैं Amen. Amen. So this is a clear warning for the church right now. और ये स्पष्ट चेतावनी है कलीसिया की ओर से। As I read this, I write in here to the messenger of the church of Karma to Christ. जैसे ही मैं इस भाग को पढ़ रहा हूं, एक दूत वाहक के समान कर्मा टू क्राइस्ट कलीसिया की ओर, उस सेवकाई की ओर परमेश्वर की वाणी। And all these warnings are given to us. और ये सभी चेतावनियां हमें दी गई है। Not only to the leaders, but also to the ones who are part of this ministry. जो सेवक है उनके लिए नहीं, लेकिन उनके लिए भी जो इस सेवकाई, इस कलीसिया के सहभागी है। So verse 1, it says, I know what you've been doing. You are known for being alive, but you are dead. सरदीस की पहला वाक्य सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यह कहलाती है कि तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। Now, let's get one thing straight. God can see inside your heart. एक बात मैं स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके हृदय को साफ साफ देखता है। No matter what you look like in the outside as a person or as a family or as a ministry, God can see deep inside. चाहे आप कैसे भी व्यक्ति हो, बाहर से, सेवकाई की ओर से, पारिवारिक तौर पर या फिर व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर और बाहर साफ देखता है। See, we can fool everybody in the whole world, but we cannot fool God. हम सभी को इस दुनिया में बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। आमीन। You can fool me, but you cannot fool God. आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं। Now, I won't say this about my wife because my wife normally sees things very far deep into your heart. So you cannot fool my wife. इसीलिए मैं ये ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते। She has the anointing where she can see inside the heart of the people through their words. आमीन। क्योंकि उनको परमेश्वर ने ऐसी कृपा दी है कि वो वाणी के द्वारा किसी के हृदय को परिच्छेद कर कर देख सकती है। You can lie to us, but you cannot
the word I could say deceive us. आप झूठ तो बोल सकते हो, लेकिन मैं ये शब्द उपयोग में लाना चाहूंगा, धोखा नहीं दे सकते। So if you ever come to us and we deny to do what you're asking us to do, or if we are harsh with you, or if we don't pray for you, it's because the Holy Spirit knows what is exactly inside your heart. यदि आप हमारे पास आए, प्रार्थना के लिए विषय बताए, शायद हम आपके लिए प्रार्थना ना करें, तो वजह ये होगी कि पवित्र आत्मा उनसे कहती है कि आपका हृदय का उद्देश्य, आपका सोच क्या है। So God has given us the gift, and right now is giving us the warning that there might be many people in the ministry who are fake from the outside, and inside they're completely corrupt. और सेवकाई की ओर से परमेश्वर की वाणी हमारे लिए और कलीसिया के लिए ये है, जो बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरे छल और कपट से भरे हैं। So in this verse it says that you look healthy from the outside, but inside you are sick and diseased. वचन के आधार पर आप तंदुरुस्त तो बाहर से लगते हो, लेकिन अंतर से, मन के हृदय के अंदर से बीमार और सड़े हुए लगते हो। You might walk around saying to everybody, bless you, but inside your heart you are saying, I can't stand you. अब सभी को तो कहोगे परमेश्वर आपको आशीषित दो जबान से, लेकिन हृदय से आप कहोगे मैं तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं रह सकते। Your conversation with the people of God or inside the church is different than your conversation at home with your family. कलीसिया वालों के साथ आपकी वाणी वार्तालाप अलग है, ना कि आपके परिवार के साथ कुछ और ही वार्तालाप है। So the verse says, you look alive, but you are dead. जीवित तो कहलाते हो, पर तुम मरे हुए हो। In other words, the people might think that you are wonderful and prospering and doing everything right according to the word, but according to the world, but according to God, you are dead for him. दुनिया के हिसाब से आप तरक्की आगे बढ़ रहे हो या फिर आशीष पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से आप मृत्यु पा चुके हो। So this is the first warning God is giving us this month for us to focus on. ये पहली चेतावनी है या फिर परमेश्वर की वाणी है जिस पर हम ध्यान बटाए और हमें गौर से देखें। There's a verse that's coming to mind right now where it says, your sins will seek you out. वाक्य जो मेरे हृदय में आ रहा है, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। In other words, if you are doing something behind closed doors right now, be careful, because God is about to expose that right now to the whole church and the whole family. यदि आप कुछ बंद कमरे के पीछे या फिर गुप्त रीति से कुछ कर रहे हो, तो ये चेतावनी के तौर पर परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर पूरी कलीसिया के सामने, सभी के सामने उसे खुलासा कर दे। God is going to reveal these sins in front of your spouse and in front of your children if you do not stop. परमेश्वर की वाणी है ये, यदि तुम नहीं रुके तो तुम्हारी पत्नी के सामने, तुम्हारे बच्चों के सामने उसका खुलासा होगा। I don't know who this word is for, but it is a warning for someone who is right now doing things behind closed doors. ये किसके लिए है चेतावनी मुझे पता नहीं, लेकिन बंद कमरों के पीछे जो भी कर रहे हो, परमेश्वर की वाणी है ये। Now let's go to verse 2. दूसरे वाक्य की ओर जाएंगे। The verse 2 says, be alert. In other words, wake up. In the King James, I think it says wake up, be watchful. There's another version that says wake up, be alert, and strengthen the things that are left, which are about to die. I note that your actions are incomplete before my God. जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तो तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। So wake up right now, church. इसके लिए जाग जाओ कलीसिया। And strengthen the things that are still not dead in your life, which are about to die.
और उस चीजों को ताकतवर बनाइए जो आपके जीवन में मिटा नहीं है या फिर मरा नहीं है। God has filled you with talent. परमेश्वर ने आपको कृपा और दानों से भरा है। God has filled you with passion to do his work. परमेश्वर ने आपको उसके सेवकाई करने के लिए उस आकांक्षा और इच्छा से भरी है। God has given you the Holy Spirit so that you can speak to anyone about Jesus Christ. परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा दी है ताकि यीशु मसीह के बारे में किसी से भी बातें कर सके। But you have allowed these things to start to die in your life. लेकिन इस पापों को या फिर जो कुछ आप कर रहे हो वो आपको मृत्यु लाने के अनुसार आप कार्यों को कर रहे हो। See, anything that is not used, it normally starts to die. यदि कुछ चीजों का उपयोग ना करे, कृपा हो या फिर वस्तुएं हो, वो मरने लग जाती है या फिर सड़ने लगता है। Every muscle in your body that is not used, it starts to die. हर एक मसल आपके शरीर में जिसकी उपयोग या फिर व्यायाम या फिर क्रियाएं आप नहीं करो तो वो मरने लगती है, कमजोर होने लगती है। So the Lord is saying right now, wake up, be alert, and first of all, recognize what things are about to die in your life. जाग जाओ, समझ जाओ और उसे समझ लो किस चीजें तुम्हारे जीवन में मृत्यु पा रही है। You have basically lost the connection with the Lord that you used to have a long time ago. आप परमेश्वर के साथ वाले उस संबंध को आप खो चुके हो जो कई सालों पहले आपका था परमेश्वर के साथ। Let's go to Isaiah 55, verse 6. यशायाह भविष्यवक्ता 55:6 में हम जाएंगे। Isaiah chapter 55, यशायाह भविष्यवक्ता 55:6। 6. Sorry, let me put it here. Thank you. It says, seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। Now, the two phrases I want you to focus on right now is while he may be found, while he is near. दो शब्दों को या फिर उस वाक्यों को मैं आपको ध्यान बटाना चाहता हूं। जब यहोवा आपके पास है और जब वो आपको पुकार रहा है और निकट है। So while he is near, जब वो आपके पास है, निकट है। जब तक, while. So Yes. the important word here is while, because it makes us understand that there is a timing when it will be too late for us to call upon God. इसका मतलब ये है जब तक, ताकि वो देर ना हो जाए, और जब तक है उसी समय पर परमेश्वर को जान लो और बुला लो। So there's a time while you can seek God, and there's a time while you can still call on to God. वो समय है जब आप परमेश्वर की खोजी कर सकते हो या फिर खोज सकते हो, और यह समय है जब आप परमेश्वर को पुकार सकते हो। Now, when I read this verse, other verses to come to mind, like for example, if you seek me, you shall find. और जब मैं इस वाक्य को कह रहा हूँ, दूसरा वाक्य, यदि तुम मुझे खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे। And another verse that comes to mind is, call upon me and I will answer. और दूसरा वाक्य है, मुझे पुकारो और तुम मुझे पाओगे। So are these contradicting this verse? या फिर क्या है ये उसके उल्लंघन में आ रहा है ये वाक्य? No, what I believe is this, that we need to seek the Lord after we have repented. हम परमेश्वर की खोजी करने चाहिए जब हमने पश्चाताप किया हो अपने पापों का। And we can call upon the Lord after we have repented. और हम परमेश्वर को बुला सके हमारे पश्चाताप या फिर उस क्रिया के पश्चात। Let's go back to verse 1 in Romans chapter 3.
Sorry, Romans, रोमियो के पत्र Revelation. प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 अध्याय के पहले वाक्य में जाएंगे। Actually, I want to jump to verse 3 right now for a second. मैं तीसरे वाक्य पे एक क्षण के लिए आना चाहता हूं। Says, so remember what you received and heard, obey it and repent. इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, सुनी थी और उसमें बना रह। And then I want to jump to verse 5. Says, the person who conquers in this way will wear white clothes, and I will never erase his name from the book of life. और 5वें वाक्य में, जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। So the person who conquers in this way, what does that mean? जो जय पाए इसी प्रकार में, उसका मतलब क्या है? In this way, to my understanding, means the one who repents. इस रीति से या फिर जो इस प्रकार से है, मतलब वो जो पश्चाताप करे, जो तीसरे वाक्य में हमने पढ़ा। So by this understanding is when we repent and we obey the Lord, then things get restored back in our life. परमेश्वर की वाणी के हिसाब से जो पश्चाताप करे और लौट कर आए, तब परमेश्वर उनसे बातें करेगा और जब परमेश्वर उनके निकट आएगा। You see, the first time God ever talks to you, he says, repent. पहली बार जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, वाणी देता है, तो कहता है पश्चाताप, मन फिराओ। You see, people are stuck with this whole idea of God is love, God will give me all the blessings in the world. लोग इस पे अपने मन को अटकाए रखे हैं कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर जगत की सारी आशीषें मुझे देगा। This is true. ये सही है, Absolutely true. पूरी रीति से सही है। There is no one who loves you the way Jesus Christ loves you. आपको इस दुनिया में कोई प्रेम नहीं करेगा जिस प्रकार से यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। And there is no one else who can bless you the way Jesus Christ can bless you. और आपको कोई आशीष नहीं दे पाएगा जिस प्रकार से यीशु मसीह आपको आशीष देता। But when Jesus started to preach while he was on earth, he did not say, "Come to me, I love you." जब मसीह ने इस दुनिया में प्रचार करना शुरू किया, तब उसने ऐसा नहीं कहा, आओ मैं तुमसे प्रेम करता हूं। Yes, he showed love and compassion through all his actions. उन्होंने अपने प्रेम को बताया अपनी सहानुभूति या फिर अपने क्रियात्मक तरीकों से। But what was the words and the preaching that constantly came out of Jesus' mouth? लेकिन निरंतर, लगातार क्या थी वो प्रचार या फिर वाणी उनके मुंह से आती थी? He said, repent because the kingdom of God is here. उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Now, why would we need to repent if the kingdom of God is here? हमें क्यों मन फिराना चाहिए यदि परमेश्वर का राज्य निकट है तो? Because when the kingdom of God is here, we always focus on the idea, well, kingdom of God means blessings. क्योंकि जब हमारा सोच ऐसा है, परमेश्वर का राज्य निकट है, तो परमेश्वर के राज्य से हमें आशीषित होने चाहिए। But the first thing that happens when Christ returns, when the kingdom of God is here, the first thing that happens is judgment. आमीन। लेकिन पहला चीज जो परमेश्वर के राज्य निकट आने पे या फिर परमेश्वर के पुनर्आगमन पर होने वाला है, न्याय। परमेश्वर न्याय करने वाला है। So when we go back to Revelation chapter 3, जब हम नीति वचन तीसरे अध्याय, प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय में वापस जाए, तभी says the person who conquers in this way means through repentance will wear white clothes and I will never erase his name from the book of life. इसलिए स्मरण कर कि तूने
कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह, और मैं मन फिराकर यदि तू जागरूक हो उस समान, और तू कद्यपि ना जान सकेगा कि तू किस घड़ी तुझ पर आ पड़ेगा। So when Christ says, repent, the kingdom of God is here, he is saying, stop what you're doing wrong, because if not, I will have to destroy you. जब परमेश्वर कहता है कि पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए और रुक जाइए, परमेश्वर का राज्य निकट है, इसका मतलब अपने पापों में से, अपने पापी कर्मों में से लौट कर आ जाइए, उसे रुका दीजिए। In this verse, we just read that if we repent and we start wearing the white clothes that he gives us, he will then not erase our name from the book of life. इस वाक्य में से जो हमने पढ़ा, यदि हम मन फिरा कर आए, परमेश्वर हमें श्वेत वस्त्र देगा और हमारा नाम कभी मिटाया नहीं जाएगा। So it is so important that we take this warning seriously. इस चेतावनी को हम बहुत ही गंभीर रीति से इसे सोचना और स्वीकारना जरूरी है। See, I was listening the other day to a preacher, a very famous preacher named Derek Prince. और एक बहुत ही जाने माने परमेश्वर के प्रचारक डेरिक प्रिंस, He said the following. He said, God has no problem punishing you. परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है आपको Punish, destroy, judge. आपको शिक्षा देने के लिए। He has no problem giving you what you deserve, which is punishment forever in hell. आपकी गलतियों के हिसाब से या फिर आपके कर्मों के हिसाब, क्रियाओं के हिसाब से आपको नरक में आपको शिक्षा देने के लिए परमेश्वर झिझकेगा नहीं। The only problem he has that he wants to forgive you. उनकी एक ही समस्या ये है कि वो आपको क्षमा देना चाहता है या फिर क्षमा करना चाहता है, Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है। And because that is a problem, he had to sacrifice himself on the cross so that he could forgive you. इसीलिए उनकी ये समस्या की वजह से अपने आप को कलवरी क्रूस पर उन्हें बलिदान कर दिया ताकि आपको क्षमा और प्रेम मिल सके। So God has no problem destroying you. लेकिन परमेश्वर को कोई समस्या नहीं है आपको नष्ट करने में। He has a problem because he wants to forgive you. यही समस्या है कि ताकि वो आपको क्षमा कर सके। And this is a warning to all of us because we have taken God for granted and we have taken his grace as something very small. आमीन। ये हम सबके लिए चेतावनी है क्योंकि हम परमेश्वर की कृपा को, उनकी क्षमा, उनकी प्रेम को हमने जानबूझकर गलत रीति से उपयोग में लाया है। Let us finish now with Hebrews chapter 3. इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय verse 7 and 8. 7वां और 8वां वाक्य। इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय 7वां और 8वां वाक्य। This says, therefore, as the Holy Spirit says today, if you hear his voice, do not harden your hearts as they did when they provoked me during the time of testing in the wilderness. अंत, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। So this is speaking to all of us. ये हम सभी से बातें कर रही है because all of us are failing in some area of our life. हम में से सभी कहीं क्षेत्र में हम हार रहे हैं। We look alive from the outside, but we are dead in the inside. हम बाहर से तो जीवित लगते हैं, लेकिन हम अंदर से मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। And God is saying today, wake up and rescue or bring back to life those things that you can still rescue. परमेश्वर कहता है कि जाग जाओ, पुनर्जीवित हो जाओ या फिर बचाओ जिस चीजों को आप बचा सकते हो और पुनर्जीवन ला सकते हो।
And as we read in this last verse, if you hear his voice today, which you are hearing, do not harden your hearts. परमेश्वर की वाणी सुनने के बाद अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो सुन रहे हो, जो आप सुन रहे हो, अपने हृदय को कठोर ना करो। Do not say, this is not for me, this is for my spouse or for my children or for somebody in my family. ऐसा मत कहिए कि ये वाणी मेरे लिए नहीं है, ये वाणी मेरे पत्नी के लिए है, पति के लिए है या फिर बच्चों के लिए है। Do not say, I am okay the way I am, God has to love me the way I am. ऐसा मत कहिए, मैं ठीक हूं, मैं जैसे हूं, परमेश्वर मुझे प्रेम करेगा, मैं जैसे भी हूं। Do not say, oh, compared to these other people, I am a saint. अपने आप को दूसरे की तुलना में मत कहिए कि मैं तो संत हूं उसके हिसाब से। God will judge you according to what you have been given. परमेश्वर आपका न्याय करेगा जो हिसाब से आपको दिया गया है या फिर आप टोले जाओगे। You have been given word and counsel and prayer day after day and month after month, and you're still stuck in the same place. You need to repent. आपको वाणी दी गई है, वचन दिया गया है, आपसे बातें कर जाती है, लेकिन दिन ब दिन आप वही अटके हो जहां आप थे। मन So God is फिराइए। saying today, repent before it is too late. परमेश्वर की वाणी कह रही है, वचन कह रहा है आपसे, मन फिराकर लौट कर आइए ताकि देर ना हो जाए। Because I guarantee that if you harden your heart, it will come to a point where you will not find the Lord when you seek Him. आपके हृदय को आप कठोर कर दो, इस ऐसे एक मुकाम पर आप पहुंचोगे, आप परमेश्वर के खोजी बन जाओगे, लेकिन आप उसे देख नहीं या फिर मिल नहीं पाओगे। You will call upon Him and you will not be able to hear His voice. आप उनको पुकारोगे लेकिन आप उनकी वाणी को नहीं सुन पाओगे। And this will happen because of your rebellion and the hardness of your own heart. ये तभी होगा आपके कुड़कुड़ाने की अवस्था या फिर धिक्कारने की या फिर उलट परमेश्वर की और आपका व्यवहार के वजह से। So today is a warning, and we understand that God warns us because He loves us. आज का वचन, आज की वाणी एक चेतावनी है और हम समझते हैं परमेश्वर हमें चेतावनी वाणी के द्वारा देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। And if you're still following your old idols and your gurus and all these things you grew up with, you need to repent right now, because there will come a point where you will need Christ and you will not find Him because of this rebellion. आप अपने गुरु या फिर सत्संग या फिर जो भी आप सुनते हो, सीखे हुए आते हो, मन फिराकर लौट कर आइए क्योंकि आपने उद्धार प्राप्त किया है। फिर भी उसमें बने रहोगे, एक दिन आप परमेश्वर के खोजी बनोगे, आप पुकारोगे, वो आपको नहीं प्राप्त होगा। No one is too far for God to reach him. कोई इतना दूर नहीं गया कि परमेश्वर उसे पास निकट ना आ सके। But God is giving us warnings here that things are dying in our life that we need to look into and bring back to life. परमेश्वर हमें चेतावनी वाणी के द्वारा दे रहा, हमारे जीवन में कुछ मृत्युएं हो रही है, कुछ क्षेत्रों में, कुछ भागों में, हृदयों में, कि हमें वापस पुनर्जीवित कर कर वापस लाना है। जाग जाइए। Next week, we will focus on how to bring those things back to life. हम अगले सप्ताह उस पर ध्यान बढ़ाएंगे कैसे उस चीजों को जीवन में या फिर जीवित ला सके। So God bless you with this message today. परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। आमीन।